Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha here from Saraswat International School, Vapi. Today we are going to start with our second lecture with respect to the sexual reproduction in flowering plant class 12th. Okay. In our previous lecture we had talked about till the male reproductive part of the flower, that is androecium. Now we are going to start with our female reproductive part of the flower. Okay, that is a gynoecium. And second thing which we are going to discuss in this lecture, that is a megasporangium, that is an ovule. Okay, so let's begin with our lecture here. As you can see on the screen, there is a structure of the pistil is available, that is a ovary, style and the stigma, right? Ovary, style and the stigma is given to you. So in the ovary, there is a presence of ovule. Everyone knows that, right? And the style is of two category. One, it can be an hollow style or it can be a solid style. As you can see on the screen, the diagram of hollow style, that means you can see there is a gap in the center, right? And in the solid style, there is a presence of cells. Okay, so that is a solid style. Let's talk about some interesting characteristic with respect to the pistil. If single pistil is present, that is a monocarpellary. If many pistil will be present, it is called as a multicarpellary. And if it is free, apocarpus, and if it is fused, then it will be called as a syncarpus. Okay, understood? So this is how we can label the things: monocarpellary, multicarpellary, apocarpus, syncarpus. Now let's move ahead with the further explanation with respect to the ovule. So here in our today's lecture, we are going to talk about the angiospermic ovule in detail. So as you can see, angiospermic ovule is commonly called as an anatropous ovule because normally there are six types of the ovules are there. We are going to deal that also, but generally in angiosperm, the ovule which is very commonly seen, that is the anatropous ovule. It is also called as the upside down ovule. Okay, so let's talk about this. As you can see on the screen, there is a wall over here. This wall indicates it is an ovary wall. Okay, and touching to the ovary wall, there is a tissue over here that is called as a placenta. Okay, what is that area called as a placenta? Okay, now through placenta, the things which is originated like this is called as a funicle, the stalk of the ovule. Okay, so what is that funicle? Funicle is called as the stalk of the ovule. That funicle which will be like enlarged, means you can say further part of the funicle will be called as a raphe. Okay, what is that called as a raphe? You can see on the screen very clearly. Okay, and that raphe will further going to develop into the two coverings over here. You can see that is called as the integuments. Okay, so the area where the integuments is originating, as you can see on the screen, that area will be called as hilum over here. Okay, so see hilum part over here, understood very clearly. Now in angiosperm, the integuments are two in number. Okay, therefore called as the bitegmic integuments. Okay, which is very commonly seen in case of the angiosperm. If you want to compare the ovule with respect to the gymnosperm, then it is a unitegmic, means only single integuments will be there in case of the gymnosperm. Obviously the ovule which is seen in case of the gymnosperm, that is also different, that is a orthotropous ovule. Okay, what kind of ovule will be present in the gymnosperm? Orthotropous, which we had already described in the plant kingdom gymnosperm part, right? So in the center there is a presence of an area. Okay, so that area which we are going to describe in detail, that is the embryo sac formation, will be going to be deal over there. Now see, integument is not fused from this side over here. That is an opening which is called as a micropylar region. Okay, this micropylar region from where actually the pollen tube is going to enter. So since the pollen tube is going to enter over here, so here only the egg development is also taking place. Okay, that is a sorry, not microspore, megaspore mother cells, because this is a female gametophyte, right? So megaspore mother cells, the term which we are going to use over here, that is a diploid in nature. Okay, so that will be undergoing meiosis and forming an haploid egg cell over there. And the rest of the cells which you see in the red color over here on the screen, these are all cells called as a nucellus cells. Okay, so this megaspore mother cell is nothing but a modification of the nucellus cell only. Okay, and rest everything will be described as soon as we will move ahead. Okay, so now as you can see on the screen, the female gametophyte development topic has been started, that is nothing but embryo sac formation. So you know that there is an opening over here which is commonly called as a micropylar region. So just opposite to the micropylar region, that will be called as a chalajal region. Okay,
So this is you have to understand very very clearly. And in the center where the embryo sac going to be formed, those all cells actually deployed in nature, they are new cellus cells. Okay, the cell which is present towards the micropylar region will undergo some kind of changes. Okay, that will be called as now megaspore mother cells. Megaspore mother cells is diploid in nature. It will undergo one meiotic division to produce the four haploid cells, as you can see over here. Those four haploid cells will be arranged in a very linear form. Okay, from this linear haploid structure, three will be start disintegrating, and only one haploid megaspore will be start developing. Okay, so you can see over here, one haploid megaspore will enlarge in size. Okay, what will happen to the one megaspore? That will enlarge in size, it will be growing in the size. Okay, and undergoing a three karyokinesis process, that is nothing but the three mitotic division. You know that one mitotic division give rise to the two cells, so three mitotic division obviously going to give rise to the how many nucleus? 8 nucleus. Okay, see, one thing you should keep in mind, the labeling. One side we are going to keep as a chalaja end, and the opposite side we are going to keep as a micropylar end. Okay, now there is a single cell, but 8 nuclear formation has been taken place over here. No cytokinesis. Okay, only karyokinesis has been taken place. This is a multinucleate condition. Now what will happen to this multinucleate condition? It will see the next figure. You can see two nucleus will be remain in the center, and three nuclei will go to the chalajal region, and three nuclei will be coming towards the micropylar region. Understood very clearly? Now let's talk about this micropylar region in detail. As you can see in the center, there is a presence of a egg cell. Means what? The center nuclei has taken the little bit cytoplasm from the, okay, means cytokinesis process has been done over here. So each nuclei will be taking the little bit of the cytoplasm, and they will produce themselves. Okay, as a cell. So in the center there will be the presence of the egg, and the remaining two cells you can see over there, those will be called as the synergids. Okay, what they will be called as the synergids. Okay, the function of the synergids is to guide the pollen tube towards a female gametophyte. Okay, to guide the pollen tubes towards a female gametophyte, that is the egg cell. Other than this, let's talk about the antipodal region. You can see there is a chalajal region, there is a presence of three cells. Okay, they had also taken the little cytoplasm, and they had converted into the three cells. They are called as the antipodal cells. Okay, they are present at the chalajal region. Now remaining two nucleus, they will not be going to take the separate cytoplasm, because the remaining part of the cytoplasm will be used by that. So if you try to understand, there is a three antipodal cells. Okay, three cells you can see on the micropylar region also, out of which two are synergids and one is, you can say, egg cell. So total these three, and upper three total becomes six, and in between there is a one cell, है ना, that is a cytoplasm and the two nuclei. Understood? So total seven cells, eight nuclear structure, as you can see on the screen. Okay, seven cell, eight nuclear structure. So let's talk about now what is egg apparatus. So let me talk about this egg apparatus. You can see egg plus synergids will be together called as the egg apparatus. Understood? So this is present at the micropylar region. So micropylar region, there is a formation of egg apparatus takes place. Okay, and now what is embryo sac? So see, whatever the thing remaining, that will be considered as a along with this egg apparatus called as the embryo sac. Means what? Egg, synergids, then antipodals, and then polar nuclei. These all things together will be producing the embryo sac. Okay, that is 8 nuclear 7 cell structure. Therefore it is also got is another name, that is the polygonal type of the embryo sac. Understood very clearly? Very easy. Okay, since all the things has been developed from a single cell, that is a megaspore mother cell. Okay, that is a nucellus cells, so it is also called as a monosporic. Okay, in nature. Okay, it is been formed from the single cell, therefore called as a monosporic. Understood very clearly? So let's move ahead with the further diagram. See, this is how the NCERT diagram given to you all. Okay, megaspore mother cells undergone a meiosis process. One meiosis process forming the four haploid cells, out of which three will be degenerated and one will be developed as a functional megaspore. This is what I had explained to you, right? So let's move ahead with the further diagram. As you can see on the screen, now that
megaspore, functional megaspore will be undergoing a three mitotic division. So this is one mitotic division, this is second mitotic division, and this is a third mitotic division. And the product you are getting total a single cell with 8 nuclei, structure multinucleate condition you can see over here. Now out of this 8, 3 has gone to the micropylar region and 3 has gone to the antipodal region. Remaining 2 is in the center. Those will be called as a polar nuclei. Okay, let's talk about the micropylar region. You can see over there one egg cell and remaining two are called as a synergids. And at the chalazal region there is an antipodal region. So this is chalazal region over here, this is micropylar region over here. So let me take this labeling over here also. Now this is micropylar, this is also micropylar, and even this is also called as a micropylar region. Okay, this is chalaja, this is chalaja, and this is also a chalajal region. Understood? So what do you understand from here? 1, 2, 4 and 8 nucleate stage of the embryo sac and a mature embryo sac structure has been explained to you. Okay, and if you want to see the detailed structure, this is how it looks like. Okay, see the detailed labeling structure, because this is a very very important thing which you have to understand. Here you will understand one more labeling. See, egg cell is there in the center, but synergids are there. But synergids, you can see at the base there is a filiform apparatus, that is a finger like projections can be seen over there. Okay, very important things. All these functions we are going to study in detail in the fertilization process, but currently you should be familiar with all the labelings. So synergids, they shows the filiform apparatus and there is a egg cell in the center. Rest everything you understood very very clearly. Okay, so let's go ahead. This diagram you have to practice. Okay, that is very important. They might ask you in the examination with respect to the labelings. Now as you can see on the screen, your new topic has been started, that is the types of the ovules. So see the labelings over here. Orthotropous, which I already told you, seen in the gymnosperms very clearly, we had studied in the plant kingdom also. Anatropous ovule, which is very commonly seen in the angiosperm, and other than this, these are also several types of the ovules which we are going to study right now, जैसे कि campylotropous, hemianatropous, amphitropous and sarcinotrophus. Okay, so let's talk about this all the detailed structures. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द स्क्रीन टाइप्स ऑफ ओव्यूल में आ रहा है ऑर्थोडॉपस ओव्यूल, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, माइक्रोपाइलर रीजन, चलाजा रीजन एंड फ्यूनिकल रीजन विल बी कमिंग इन अ वेरी स्ट्रेट लाइन. दैट इज व्हाट द ऑर्थोडॉपस ओव्यूल मींस. Okay, therefore it is also called as a upright ovule, or you can say as a straight ovule also. So what is written over here? Here micropyle, chalaja and funicle all comes in a straight line, very commonly seen in the gymnosperm. Example is Polygonum, Piper, Cycas, Urtica. These are all members of the gymnosperms over here. ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे एनाट्रोपस ओव्यूल को लेके. जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत कॉमनली देखा जाता है एंजियोस्पर्म के अंदर. इसको इन्वर्टेड ओव्यूल के नाम से भी जाना जाता है. 180 डिग्री कर्व्ड के हिसाब से भी इसको लेबल किया जाता है. ओके, सो एग्जाम्पल क्या है? मालवेसी, कॉम्पोसिटी, कुकुरबिटेसी, जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स है एंजियोस्पर्म से मोस्ट कॉमनली, उनके एग्जाम्पल्स आप लोग यहाँ पे रख सकते हो. ठीक है, सोलानेसी एंड कैस्टर एंड ऑल एनाट्रोपस ओव्यूल के लिए. अभी बढ़ते हैं आगे हेमिट्रोपस ओव्यूल के लिए. दैट इज नथिंग बट अ ट्रांसवर्स. दैट मींस व्हाट? देखो, अगर माइक्रोपाइल और चलाजा अगर आप लोग देखोगे, सो ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? दिस रीजन, राइट? तो सी माइक्रोपाइलर चलाजा इज राइट एंगल टू द फ्यूनिकल. बात समझ में आई? इज राइट एंगल टू द फ्यूनिकल. जो फैमिली यहाँ पे देखी जाती है वो है रेननक्यूलेसी एंड द प्राइम्यूलेसी. ओके, सो दिस आर द टू फैमिलीज गिवन यू एज एन एग्जांपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड हेमिट्रोपस ओव्यूल किसमें देखा जाता है करके. याद रखना है आपको, राइट एंगल टू द फ्यूनिकल. ठीक है, उसी के हिसाब से आप लोग कैम्पेलोट्रोपस बड़े आराम से याद कर लोगे, क्योंकि देखो ये आपको स्क्रीन पे एक पर्टिकुलर एंगल देखने मिल रहा है. सही बात है ना? तो चला जा और माइक्रोपाइल है जो कि एक फ्यूनिकल के रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर एंगुलर स्ट्रक्चर बना रहा है. ठीक है, सो एंगुलर ओव्यूल कहते हैं इसको. थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, दैट सेड. इट इज सीन इन केस ऑफ द क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनोसी, चिनोपोडिएसी, कैपेरिडेसी. ओके, दीज आर द फैमिलीज गिवन टू यू फॉर द कैम्पेलोट्रोपस. कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द एम्फीट्रोपस ओव्यूल. एम्फी यानी देखो यहाँ पे, एम्फी का मतलब टू नहीं होता है यहाँ पे, एक्चुअली सिनेरियो डिफरेंट है. यहाँ पे हॉर्स शू टाइप एम्ब्रियो सैक है, तो यही एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है. एम्ब्रियो सैक इज अ हॉर्स शू शेप. ओके, दैट इज द सिंपल थिंग. सीन इन द फैमिली एलिसमेसी, देन Butomacy, and then Centrospermi, then Lemma and the Poppy are the example. At least आप लोग Lemma and Poppy का example तो याद कर ही लो. बाकी की फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये Lemma and Poppy वाला एग्जाम्पल है आपके लिए. ठीक है, दूसरी बात जो है, that is the last criteria, that is the Sarcinotropous ovule. Okay, seen in case of the you can say desertification plants like Cactaceae, Opuntia, Plumbaginaceae. Okay,
बॉडी जो है वो पूरा कर्व्ड होके अपराइट हो जाता है। सो सी द कंप्लीट पूरा का पूरा यू टर्न मार लिया जैसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इस तरीके से समझ में आ रही है बातें, क्योंकि वो अपराइट पोजीशन लेना चाहता है, इसलिए सर्सिनोट्रोपस। ओके, कैक्टेसी, अपोन्शिया एंड प्लम्बाइजिनेसी आर द families belong to these regions. So we had completed the types of ovule also and the development of the female gametophyte. Now actually we are going to start with our new topic that is called as a pollination. So let's talk about the pollination in detail. सबको पता होता है कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से लेके स्टिग्मा तक, उसको कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, आपके स्क्रीन पे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि देखो, अगर पॉलिनेशन बाय एयर हुआ तो उसको एनिमोफिली कहते हैं, बाय वाटर हुआ तो उसको हाइड्रोफिली कहते हैं, बाय इंसेक्ट हुआ तो एंटेमोफिली कहते हैं, बाय बर्ड्स हुआ तो ऑर्निथोफिली कहते हैं। कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स तो लोग क्या करते हैं, एनिमोफिली मार देते हैं, जबकि वो होता है विंड पॉलिनेशन। एनिमल्स के लिए वर्ड आता है जूओफिली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज होना नहीं है। बैट पॉलिनेशन जो है उसके लिए टर्म यूज किया जाता है चिरेप्टेरोफिली, एंड्स के थ्रू होगा तो मैरमैकोफिली, स्नेल्स के थ्रू होगा तो मेलेपोफिली, एंड स्नेक्स के थ्रू होगा तो ओफियोफिली। गेट फेमिलियर विथ ऑल दिस टर्म्स विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है दिया है यहाँ पे स्क्रीन पे, देखो ध्यान दो। ठीक है, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं यहाँ से, या तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स है। ओके, देखेंगे अभी धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फर्दर देर आर टू कैटेगरीज, आपको तो पता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन जितना आसानी से ये टर्म दिख रहा है उतना आसानी से ये टॉपिक आगे नहीं बढ़ता है। ओके, तो सबसे पहले बढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन के साथ। सेल्फ पॉलिनेशन की दो कैटेगरी खुल जाती है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एक होता है ऑटोगैमी और दूसरा होता है गेटेनोगैमी। ये आपका इंपॉर्टेंट लेक्चर हो गया, मतलब ओके, ऑटोगैमी एंड गेटेनोगैमी का अगर आप लोग समझ रहे हो तो ये हो गया आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है, देखो बहुत इजी है समझना। ऑटोगैमी का मतलब ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का एंथर से लेके स्टिग्मा तक, लेकिन यहाँ पे फ्लावर जो है वो खुद का ही फ्लावर है, मतलब सेम फ्लावर में ही सिनेरियो हो रहा है। तो अगर सेम फ्लावर में हो रहा है तो सिंपल सी बात है, फ्लावर कैसा होना चाहिए, बायसेक्सुअल होना चाहिए। इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन वही गेटेनोगैमी की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ये आपको ध्यान रखना है। एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, लेकिन ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर या तो यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं या तो बाइसेक्सुअल होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इन शॉर्ट उनका सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रहा है। अभी देखो हियर मिक्स, अभी ये सेल्फ पॉलिनेशन का प्लस पॉइंट क्या है, हियर मिक्सिंग ऑफ द सेम जीन पूल इज टेकिंग प्लेस, ओके, विच रिजल्ट्स इन द इनब्रीडिंग। ओके, आपस में ही खुद के कैरेक्टर्स वो लोग कंटिन्यू रखे हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने मिलेगा, नो रिकॉम्बिनेशन विल बी सीन, नो इवोल्यूशन। तो ये प्लस पॉइंट नहीं है, ये एक्चुअली इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, है ना, क्योंकि हर बार वही कैटेगरी आ रही है, वही कैरेक्टर्स आ रहे हैं, उसी तरीके का फ्लावरिंग, है ना, वही सारी हरकतें देखने मिलती है, यहाँ पे कोई वेरिएशन आपको नहीं देखने मिल रहा है जेनेटिक लेवल पे। ठीक है, लेकिन ये लोग जो सर्वाइव करने का जो एबिलिटी होता है ना, वो उनका 100% होता है। ठीक है, बड़े इजीली आप लोगों ने समझ लिया ऑटोगैमी एंड गेटेनोगैमी। अभी बढ़ते हैं, आपको क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए आती है कैरेक्टरिस्टिक आपके स्क्रीन पे, दैट इज अ जेनोगैमी, या फिर इसको अलग से टर्म यूज किया जाता है ओलोगैमी करके। ठीक है, जेनोगैमी या फिर ओलोगैमी, दोनों टर्म्स आपको ध्यान रखना है, कंपलसरी है, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर भी हेडिंग को लेके। ओके, सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑफ द वन प्लांट, देखो क्या बोल रहा है, वन फ्लावर ऑफ द वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट, लेकिन स्पीशीज कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, स्पीशीज सेम होनी चाहिए, तभी काम होगा क्रॉस पॉलिनेशन का, अदरवाइज नहीं। ओके, नोट, अभी यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो दिमाग में सबसे पहले बात लेके आ जाओ, एजेंट लगेंगे, बिना एजेंट के काम नहीं होगा, मतलब थर्ड पार्टी आपको चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तभी काम होगा। हियर अ न्यू प्रोजेनी जो डेवलप्ड होती है ना, वो बेटर होती है उनके पास, क्योंकि दो पेरेंट्स के अपने अपने बेस्ट कैरेक्टर आए हुए रहते हैं। ओके, सो बेटर कैरेक्टर ऑफ बोथ द पेरेंट्स हेल्पिंग इन द इवोल्यूशन टू टेक्स प्लेस, मतलब यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस आपको देखने मिलेंगे। समझ में आ रही है बात, इजी है, बढ़ते हैं आगे। अभी देखो, अभी हमारा जो टॉपिक चालू हो गया है वो है विथ रेस्पेक्ट टू द एडेप्टेशन फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। अभी सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए क्या क्या ऐसी एडेप्टेशन करके रखे हैं प्लांट्स ने, जैसे कि होमोगैमी। होमोगैमी क्या मतलब, मेल और फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है ना, वो एक ही टाइम पे मैच्योर हो जाते हैं, तो वो लोग का सेल्फ पॉलिनेशन का चांसेस बन जाता है।
दूसरी कैटेगरी जो होती है वो है क्लिस्टोगैमी, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझ लो ठीक से, ठीक है। क्लिस्टोगैमी, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। नोट हियर द सेकंड नोट, अभी यहाँ पे कंडीशन जो है वो देखो, पहला फ्लावर जो है आर क्लोज्ड, अगर फ्लावर क्लोज्ड होगा तो सिंपल सी बात है उन लोग का सेल्फ पॉलिनेशन ही चांस है, दूसरा कोई चांस ही नहीं बनता है। ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्लिस्टोगैमस कंडीशन, यानी फ्लावर शुड बी क्लोज्ड, क्लिस्टोगैमी, ठीक है। व्हेन द फ्लावर्स आर ओपन उसको कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऐसे काइंड के फ्लावर को हम लोग कहते हैं चैस्मोगैमस फ्लावर। ओके, समझ में आई बात, चैस्मोगैमस कंडीशन ऑल्सो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगा, जैसे कि ऑक्सैलिस आ गया, वायोला आ गया, कॉमेलिना आ गया, ये तीन ऐसे प्लांट्स हैं जो दोनों टाइप के फ्लावर बनाते हैं, या इधर क्लोज फ्लावर इधर ओपन फ्लावर, ठीक है। मतलब ये सेल्फ पॉलिनेशन को भी फेवर कर रहा है, ये क्रॉस पॉलिनेशन को भी फेवर कर रहा है, यानी ये नाम क्या हो गया, क्लिस्टोगैमस एंड चैस्मोगैमस कंडीशन, ठीक है। इजी है, नाम याद रखो, ऑक्सैलिस, वायोला, कॉमेलिना। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की तरफ, दैट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन के लिए नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है जियोकार्पी। इसमें एग्जांपल आपको एक ही पढ़ना है, दैट इज एरेचिस हाइपोगिया, दैट इज नथिंग बट द ग्राउंड नट। ओके, वो उसका साइंटिफिक टर्म है, बॉटनिकल नेम है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ओके, देखो यहाँ पे मैं ड्राइंग से बता देता हूँ, बाकी सारी बातें इजिली आप लोग पढ़ भी सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है, ओव्यूल के नीचे का जो छोटा सा बेस होता है ना, जिसको कहा जाता है पेडिसेल, वो पेडिसेल इस तरीके से एनलार्ज होता है कि ओवरी को ऊपर उठा लेता है, बाकी तो ये जो एंथर स्टाइल सिग्मा वो तो गिर जाएंगे, दैट इज यू नो दैट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है ना। तो ये पूरा जो सिनेरियो है वो पेडिसेल इतना बढ़ जाएगा साइज में कि ओवरी को ऊपर लेके जाएगा, लेकिन बाद में वजन के कारण, ओके, वो क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी वो नीचे खींचा आ जाता है, तो ओवरी सीधा ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाता है। जैसे ओवरी ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाएगा वो फ्रूट फॉर्मेशन कर लेगा, बात समझ में आई, इतना इजी है। तो पेडिसेल गेट एनलार्ज इन द साइज, तो सी, as soon as the fertilization takes place, the pedicel, that is the stalk of the flower, elongates and the ovary comes in the contact with the soil and produces the fruit, सिंपल है, ठीक है। जियोकार्पी समझ में आ गया। नेक्स्ट कैटेगरी जो आपके स्क्रीन पे आ रही है, दैट इज अ मिराबिलिस जैल्पा, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ 4 o'clock प्लांट। इसमें क्या होता है, एंथर्स जो है ना वो स्टिग्मा के ऊपर बेंड हो जाते हैं। ओके, स्टिग्मा जो है वो इतना छोटा रहता है कि वो एंथर जो ग्रो कर जाते हैं वो सीधा बेंड हो जाएंगे इस तरीके से कि स्टिग्मा के साथ उनका पॉलिनेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। सो अगेन इट इज अ मॉडिफिकेशन फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। बढ़ते हैं आगे विनका रोसिया को लेके। विनका रोसिया का एक बात जरूर ध्यान में रखना कि इसका जो फ्लावर होता है वो फनल शेप होता है। ओके, इसमें क्या हो जाता है, स्टाइल जो है वो फ्लावर की तरफ इलोंगेट होने लगते हैं, मतलब स्टाइल जो है फ्लावर का वो इलोंगेट होता है, इट रीचेस टू द एंथर, क्योंकि एंथर जो है ना ये पॉलीपेटालिस है। ओके, मतलब क्या पेटल्स के साथ जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे समझ में आ रही है बात, तो इसकी हाइट थोड़ी ऊपर है। तो स्टाइल जो है वो साइज में इस तरीके से ग्रो करेगा कि एंथर के कांटेक्ट में आ जाएगा और फिर वो लोग का सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। विनका रोसिया समझने के बाद सोलैनम ट्यूबेरोसम यहाँ पे क्या हो जाता है, तो जो स्टिग्मा है वो एंथर के साथ कॉइलिंग कर लेता है और फिर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो स्टिग्मा गेट कॉइल्ड अराउंड द एंथर फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ we had completed the adaptation for the self pollination. Now we are entering into the next topic, that is called as the adaptation for the cross pollination, ठीक है। So flowering plant have developed many devices to discourage the self pollination and to encourage the cross pollination, और होना भी चाहिए क्योंकि वेरिएशंस वगैरह जो है वो इसी के थ्रू देखने मिलेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहला जो स्क्रीन पे आ रहा है वो है यूनिसेक्सुअलिटी, या फिर इसका दूसरा नाम है डाइक्लिनी। आपको नाम कंपलसरी याद रखना है हेडिंग के साथ, ठीक है। और मैं एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाला हूँ, कोशिश करो कि आप सारे एग्जांपल्स ध्यान में रखें, ठीक है। फ्लावर्स कैन बी पिस्टिलेट और इट कैन बी स्टैमिनेट, पिस्टिलेट यानी फीमेल फ्लावर और या तो फिर हो सकता है वो मेल फ्लावर, ठीक है। अभी नोट क्या बोल रहा है देखो ना, इट प्रिवेंट्स द ऑटोगैमी बट नॉट गेटोगैमी। ओके, ऑटोगैमी को बचा रहा है लेकिन गेटोगैमी को नहीं। ओके, सो मतलब आप देखो यहाँ पे कैस्टर और मेज का जो मैंने एग्जाम्पल दिया है ये दोनों के दोनों मोनोशियस प्लांट है। ओके, मतलब हियर बोथ मेल एंड द फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, समझ में आ रही है बात, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। अभी नोट क्या है, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, पपैया, ये डायोशियस है, इनका जो प्लांट है वही खुद सेपरेट हो जाता है, तो यहाँ पे इसका जो एक्सप्लेनेशन था ऊपर वाले नोट का वो उल्टा हो जाएगा। उल्टा नहीं, इन द सेंस ये ऐसे हो जाएगा कि ये दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बोथ ऑटोगैमी भी हो रहा है गेटेनोगैमी भी हो रहा है, समझ में आ रही है बात। सो दिस इज द कंडीशन विच यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर विथ रेस्पेक्ट टू द पपैया। ओके, डायोशियस प्लांट है। डाइकोगैमी,
हियर प्रोटैंडरस कंडीशन विल बी सीन। प्रोटैंडरस का मतलब है कि मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो सबसे पहला डेवलप हो जाएगा एज कंपेयर टू द फीमेल। ठीक है, सो पोलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, यानी स्टिग्मा बिकम्स मैच्योर, उसके पहले ही पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ, कॉटन, कोरिएंडर, सनफ्लावर, टैगेटस, क्रॉकस, ओकरा यानी भिंडी एंड साल्विया, दीज आर द एग्जांपल गिवन टू यू। ओके, खास करके कॉटन, साल्विया, भिंडी, ये तीन नाम तो कंपलसरी याद रखना, इवन द सनफ्लावर इज द बेस्ट एग्जांपल टू रिमेंबर। ठीक है, कंपलसरी ये चार नाम तो याद रखना ही है आपको। ये नोट क्या बोलता है, हियर प्रोटोगाइनी कंडीशन कैन आल्सो बी सीन। हमेशा ऐसा नहीं है कि प्रोटोगाइनस कंडीशन, प्रोटोगाइनी भी पॉसिबल है, उसके लिए अलग से एग्जांपल देता हूं, जैसे कि बैनियन, पीपल, कस्टर्ड, custard apple in short, okay, magnolia, michaelia, mirabilis jalba, ranunculus, these are the example given for you, okay, for the protogyny condition। समझ में आ रही है, मतलब वहां पे फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है वो जल्दी डेवलप हो जाएगा एज कंपेयर टू द एंथर्स। नाउ थर्ड एग्जांपल इज हेटेरोस्टाइली। हियर डिफरेंट स्टाइल साइज विल बी अवेलेबल। ओके, जैसे कि पहले आ रहा है स्क्रीन पे यूनिंग प्राइमरोस, जो कि दो टाइप्स के फ्लावर बनाते हैं। ओके, इसलिए इनको डाइमॉर्फिक भी कहा जाता है। इवनिंग प्राइमोस के दो टाइप के फ्लावर हैं, एक होता है पिन फ्लावर और दूसरा होता है थ्रम फ्लावर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो पिन फ्लावर के मतलब है एंथर की साइज जो है वो छोटी दिखेगी, और थ्रम फ्लावर की जो है सिनारियो उसमें एंथर की साइज बड़ी दिखेगी। ठीक है, और पिन फ्लावर में स्टाइल और ये जो स्टिग्मा आप लोग देख रहे हो इसकी हाइट काफी है, लेकिन यहीं पे इसकी हाइट छोटी हो जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आ रहा है नेक्स्ट, दैट इज ऑक्सैलिस। ये तीन टाइप के फ्लावर बनाता है, इसलिए इसको ट्राइमॉर्फिक भी कहा जाता है। तो पिन फ्लावर तो मैंने आपको बता दिया, थंब फ्लावर मैंने बता दिया, सेम ही रहेगा। और एक होता है नॉर्मल, जहाँ पे सबकी हाइट इक्वल रहती है, मतलब इवन द स्टिग्मा की हाइट भी उतनी ही रहेगी जितनी एंथर की हाइट रहेगी। बात समझ में आ रही है, सब एक लेवल पे रहेंगे। इफ क्रॉस पॉलिनेशन फेल्स तो वो खुद का सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं। समझ में आई बात, पहला प्रायोरिटी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, अगर फेल हो गया तो वो लोग सेल्फ पॉलिनेशन से काम चला लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी जो आपके स्क्रीन पे आ रही है, नेक्स्ट एडेप्टेशन, दैट इज अ प्रीपोटेंसी, यानी एप्पल एंड पीच आपको कंपलसरी बनता है यहाँ पे ध्यान रखने के लिए एग्जांपल। ठीक है, ये देखो, बोथ सेल्फ एंड द क्रॉस पॉलिनेशन में ऑकर, मतलब सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन में ऑकर, लेकिन पहला प्रायोरिटी हमेशा दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन को दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने पिंक कलर के मार्कर से दिखाया है, ये खुद का पोलन ग्रेन है जो येलो कलर में है। अगर दूसरा वाला नहीं आया रहेगा तो वो सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। समझ में आई बात, दैट इज व्हाट द मीन ओवर हियर। प्री पोटेंसी मतलब दूसरों को पहला प्रायोरिटी देना है। ओके, नाउ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यहाँ पे खुद के पोलन ग्रेन को कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, एग्जांपल पोटैटो एंड टोबैको, नो सेल्फ पॉलिनेशन बट फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन इफ पॉसिबल ड्यू टू एस जीन। इट इज पॉसिबल किसकी वजह से होता है, एस जीन की वजह से। एस जीन एक ऐसा जीन है जैसे कि खुद का ही पोलन खुद के स्टिग्मा के ऊपर गिरा फ्लावर के, तो वो लोग खुद को एनालाइज कर लेते हैं और फिर उसको अलाउ नहीं किया जाता है, मतलब पोलन जर्मिनेट नहीं हुआ जाता है। ओके, इट विल नॉट अलाउ द पोलन टू गेट जर्मिनेट ओवर देयर। इफ अ पोलन ग्रेन हैज एन एलील ऑफ द स्टिग्मा on which it lands, the pollen grain, matlab the pollen tube fails to grow. Depending on the species, self recognition blocks prevents, matlab self recognition blocks pollen tube grow by one of the two molecular mechanisms. एक है गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, एक है स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट बटरों में आगे सेपरेशन ऑफ वन सेक्स एक्सप्रेशन, मतलब क्या, एक कोई भी जो बंदा है वो सप्रेस हो जाएगा, या तो मैच्योर नहीं होगा, मतलब मेल या तो फिर फीमेल होता है। ठीक है, फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल, लेकिन कोई भी एक जन फेल हो जाएगा मैच्योर होने के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्क्रीन पे आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज हर्कोगैमी। ओके, इन सम अदर स्पीशीज the anther and the stigma are placed at different position so that the pollen cannot come in the contact with the stigma of the same flower. Okay, that is what the hercogamy means. यहाँ पे एग्जाम्पल जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है कैलाट्रोपिस, लेकिन इसके अलावा ऑर्किड्स ऑल्सो प्ले द सेम इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर। ओके, ये अपना पोलन ग्रेन को एक सैक में डाल देते हैं जिसका नाम है पॉलिनिया। ओके, जो कि एज ए ट्रांसलेटर का काम करते हैं। पॉलिनिया किसका काम करते हैं, एज ए ट्रांसलेटर का काम करते हैं। अगर मैंने फोटो रखा होगा तो दिखा दूंगा आपको। ठीक है, नहीं है, सो उसका पोलन का मतलब पॉलिनिया का तो फोटो नहीं है, मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ हाउ इट लुक्स लाइक। देखो, तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे ऐसा रेड मतलब ब्लैक कलर का ब्राउन कलर का डॉट होता है, ये दो ब्रांचेस उसके ऐसे निकलेगी। ठीक है, यहाँ से
रुको एक सेकंड बताते। फिर यहाँ से उसकी दूसरी ब्रांच आएगी, यहाँ पे हो जाएगा सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओवर हियर, यही होता है पॉलिनिया। और इसके अंदर होता है पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो खुद का पोलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा के साथ कांटेक्ट में आ ही नहीं पाता है, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन होती है पॉलिनिया की, वो एज अ बैरियर का काम करती है। समझ में आ रही है? ये जो मेम्ब्रेन है इसको पॉलिनिया कहा जाता है। और ये विंड पॉलिनेशन भी पॉसिबल है इसका। ठीक है, और ये एयर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से ये मेम्ब्रेन जो है वो डिकम्पोज हो जाती है और पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से भी इसका मॉडिफिकेशन है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना ये सारी बातों को। सो पॉलिनिया ऑफ ईच लोब प्रोट्रूड टू वन साइड एंड फॉर्म्स अ स्टेराइल हाइड्रोस्कोपिक रेटिनाक्यूलम, और इसको कॉर्डिकल भी कहा जाता है। ओके, रेटिनाक्यूलम ऑफ बोथ पॉलिनिया अटैच टू अ डॉटेड डार्क कलर ग्लैंड कॉल्ड एज अ कार्पस्क्यूलम। ये जो आप लोगों को मैंने यहाँ पे डॉट बताया था ना, यही है वो कार्पस्क्यूलम। ठीक है, विच लाइज ऑन द स्टिग्मा। Corpusculum is a bilobed and adhesive structure. Okay, it is a adhesive structure. Now the entire structure will be called as a translator or apparatus। मतलब पूरे पॉलिनिया को दूसरा नाम है ट्रांसलेटर। ठीक है, एग्जांपल जो आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो दैट इज अ कैलेट्रोपिस एक्सलापिडेसी फैमिली। ओके, और ऑर्किड जो है वो ऑर्किडेसी फैमिली। तो ऐसे क्या क्या ऑर्किड्स है जो यहाँ पे एग्जांपल रख सकते हैं, जैसे कि ग्लोरियोसा, साल्विया एंड एरिस्टोलोकिया। और ये जो कैलेट्रोपिस है ना, इसका अगर स्पीशीज चाहिए आपको तो गाइगेंशिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, गाइगेंशिया, GANTIA, ये एक स्पीशीज आप लोग ले लो, कैलाट्रोपिस गाइगेंशिया। आप लोगों ने देखा है ओके, जो एक्चुअली जो मराठी पीपल रहते हैं उनके दूल्हे के सेहरे में ये जो व्हाइट कलर के या फिर पर्पल कलर के फ्लावर जो होते हैं ना, वो इन्हीं के होते हैं, कैलाट्रोपिस गाइगेंशिया के ही होते हैं। मतलब दूल्हे का जो सेहरा होता है वो इन्हीं फ्लावर्स के थ्रू बनाया जाता है। ओके, मैं बताऊंगा आप लोगों को, टेंशन ना लो। ओके, सारी बातें अवेलेबल है अपने पास। मिलते हैं आपको फर्दर मॉडिफिकेशन के साथ, दैट इज द फर्दर एक्सप्लेनेशन, दैट इज हाइड्रोफिलियन ऑल। लेकिन अभी के लेक्चर में नहीं, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, मतलब अभी आप लोगों ने खाली सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन के जो एडेप्टेशन वाला जो टॉपिक था वो खत्म कर दिया है। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने फीमेल गैमेटोफाइट एंड द टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के बारे में भी डिस्क्राइब कर लिया है। ओके, सो रीड योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से।